जी, the topic for today is basically partnership changes. We have discussed about partnership in detail. Today we are going to discuss about partnership changes. And partnership changes includes three topics. Number one is admission of a partner. Number two is retirement or death of a partner. एक ही बात है. Because even if the partner is going to retire or even the partner is going to die or death of a partner, we are going to have the same treatment. So admission, retirement, and number three is profit and loss sharing arrangements. Profit and loss sharing arrangements is a more complicated topic, which is usually not very often asked by examiner in the exam. So this is not required generally by the examiner. Very few questions have been seen in the exams, but this time I believe that this is very important for this year. So we should be able to do that in an appropriate way. We should be able to do that. So admission, retirement, or profit sharing arrangement is topics for the next topic of partnership. Or number one is admission. Admission means admission of a partner. When new partner is going to admit in the partnership, that is called admission. And when there isn't going to be an admission, there are three things which are going to be affected. Number one is capital. When the new partner is going to enter into the partnership, he has to contribute some capital into the business, either in the form of cash or in the form of bank or in the form of an asset. He can bring some premises, he can bring some furniture, he can bring some motor vehicle in the business. That is called capital. So he can bring capital in the business that is going to be affected because in the admission procedure, when the partner is going to take admission in the new partnership, which is already being run by other partners, he has to contribute his part of capital into the business. Number two is goodwill. What is goodwill? We'll discuss that. Goodwill is going to be affected when the partner is going to admit, when the partner is going to be admitted in the partnership, and we'll discuss that in detail. Number three is revaluation. What is revaluation? The word tells you that the assets and the liabilities are going to revalue, means they are going to change, their amounts are going to be changed because of the admission of the partner. Either some assets are going to increase their value or some assets are going to decrease their value. Liabilities can increase also, liability can decrease also. Because of the admission, there is going to be a partnership change. Maybe there were two partners previously, a third partner has entered into the partnership, he has to bring capital into the business, there has to be a treatment of goodwill because of it, and there will be some revaluation of assets and liabilities. ये तीन चीजें इसमें इफेक्ट होती हैं, इसको आप लिख लें और फिर मैं इससे आगे चलता हूं. जी हमजा, लिख लिया आपने? जी सर. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं जी हम इससे आगे. अब हमारा हम निकाल लेते हैं हमारा टॉपिक की पार्टनरशिप एग्रीमेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ये पेज नंबर निकाल लें आप अपना, ठीक है जी. और हम स्टार्ट किससे करेंगे? पार्टनरशिप एग्रीमेंट से, और गुडविल से हमने स्टार्ट करना है फिर. तो फर्स्ट थिंग इज दिस, if there is a partnership agreement between the partners, then it's fine. There will be interest on capital, there will be interest on drawings, there can be partnership salary. But in the absence of partnership agreement, Partnership Act 1860 will prevail or 1932 will prevail. The act includes the following provisions, which are, is in that case partners are entitled to contribute equally to the capital of the partnership. यानी सब पार्टनर्स एक जैसा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली. There will be no interest on capital, there will be no interest on drawing, there will be no salaries. But there is one thing more which is not written over there. There will be interest on loan at the rate of 5%. Means if any of the partner has given some loan to the partnership, if it either it is given or not, we have to pay him interest at the rate of 5% on the amount of loan, if there is a loan into the partnership given by any partner. तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी होगा. ये भी कंडीशन होती है जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता. यानी अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट लॉस इक्वल शेयर होगा, कैपिटल भी इक्वल कंट्रीब्यूट किए जाएंगे. कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, कोई सैलरी नहीं होगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 5%.
ठीक है जी, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट और ये चीजें आप पढ़ चुके हैं पहले ही। गुडविल से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गुडविल? Goodwill is an intangible asset. For example, when I will be able to teach some of the students, then definitely I have created some goodwill for that. When new students used to come and they used to tell me that our friend has told us about you, that you are very sincere and honest to teacher and you have very good grip on the subject also, तो मैं अपनी गुडविल के पैसे भी चार्ज करता हूँ। यानी मेरी फीस बाकी टीचर से अगर ज्यादा है, सपोज कर लेते हैं, वैसे तो मेरा ख्याल है कम है, लेकिन अगर हम सपोज करें कि ज्यादा है, इसका मतलब मैं अपने गुडविल के पैसे भी चार्ज कर रहा हूं जो मैंने बनाई है। यानी गुडविल क्या होती है? साख। इट इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। इट इज ए फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट फॉर द बिजनेस। बिजनेस का एसेट है। इनटेंजिबल का मतलब है जिसे आप छू नहीं सकते। तो जारी बात है, आप किसी गुडविल के साख को छू तो नहीं सकते ना। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ गुड ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग। आप कारोबार को बहुत अच्छा चला रहे हो, तो गुड ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग की वजह से आपने एक रेपुटेशन बना ली है। फॉर एग्जांपल, ग्रीन हॉल एकेडमी की रेपुटेशन बाकी तमाम एकेडमी से ज्यादा है। क्यों? बिकॉज दैट इज द ओल्डेस्ट वन एंड इट हैज बिल्ड अप मोर रेपुटेशन, मोर गुडविल in comparison to other academies. Why? Because they have more customers. Their quality talks about them. Their quality is different from them, and people are more attracted towards that. There is more customer retention regarding that business. That creates the goodwill for the business. It is the reputation arising because of good years of trading. It is a difficult value to measure, and goodwill is basically should not be shown in the books of accounts. हम बुक्स में गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते, इसे हम कहते हैं इनहेरेंट गुडविल। इनहेरेंट गुडविल का मतलब होता है ऑलरेडी क्रिएटेड गुडविल। इनहेरेंट गुडविल मींस जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है आपकी, ठीक है जी, जो बिजनेस के कारोबार के चलने से पैदा होती है। कैसे? बेटा पहले साल तो गुडविल कोई होती ही नहीं किसी बिजनेस की। नेक्स्ट ईयर से गुडविल क्रिएट होती है जब उसका नाम बनता है। वो जो रेपुटेशन है, वो जो नाम है, वो जो ब्रांड है, वो गुडविल बनती है बिजनेस की। इट इज अ डिफिकल्ट वैल्यू टू मेजर एंड गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी। व्हाई? बिकॉज इट्स अगेंस्ट टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। मनी मेजरमेंट के अगेंस्ट है। बिकॉज कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज माय गुडविल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माय गुडविल? देयर इज नो प्राइस फॉर दैट। पोल्का और वॉल्स का मर्जर हुआ था, तो पोल्का ने तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपया वॉल्स से वसूल किया था सिर्फ गुडविल का, other than assets of the business. Yani Polka has sold all the assets to Wall, and there is going to be a merger between them. And merger means that Walls has taken over all the assets and liabilities of Polka, और Polka का नाम Walls में मर्ज हो गया। लेकिन Polka ने अपने assets के पैसे तो लिए, उसके अलावा 2 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लिया। वो किसी से? वो गुडविल का है। तो गुडविल पहले साल नहीं बनती, काम करने के बाद बनती है, लेकिन ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि वो आपको तब उसकी कोई मैयर एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं ला सकते ना। आप 2 करोड़ मांग ले, 3 करोड़ मांग ले, 10 करोड़ मांग ले, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई भी नहीं हुई। इसका मतलब इसकी कोई, इसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करना, न्यूमेरिक टर्म्स में एग्जैक्टली एक्सप्रेस करना मुश्किल है। तो मनी मैनेजमेंट के अगेंस्ट है और प्रूडेंस के भी अगेंस्ट है। प्रूडेंस कहता है कि प्रॉफिट्स जो है ना शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। अगर आप गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं तो गुडविल एक नॉन करंट एसेट्स है और एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है कि आप गुडविल की वैल्यू तो आप कोई लगा नहीं सकते, तो आपके एसेट्स ओवरस्टेट कर जाएंगे, क्योंकि ये फ्यूचर प्रॉफिट को दिखा रहा है। गुडविल आपको कब मिलेगी? जब आप पोल्का ने बिजनेस बेचा अपना वॉल्स को, तो गुडविल के पैसे मिले ना, वरना उसने लिखे हुए थे या सोचे हुए थे, ठीक है ना, वो तो अलग चीज है, अलग चीज है, मिले तो नहीं ना उसको। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर प्रॉफिट है, दैट शुड बी इग्नोर्ड, क्योंकि ये पैसे तब मिलेंगे जब बिजनेस सेल होगा, तब गुडविल के पैसे मिलेंगे, और कितने मिलेंगे वो भी नहीं पता। That is against the concept of money measurement and prudence. It is an intangible asset which cannot be touched and normally not to be shown in the balance sheet. हम इस एसेट को बैलेंस शीट में शो नॉर्मली नहीं करते, क्योंकि इनहेरेंट गुडविल को, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी कहते हैं इसको। इंटरनली जनरेटेड गुडविल बिजनेस के अंदर से जनरेट होती है। इसको हम अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, मनी मेजरमेंट और प्रूडेंस के। अब गुडविल कैसे अराइज होती है, उसके रीजन हो सकते हैं। इट कैन बी गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग,
it can be quality of product, it can be good location, it can be good manpower, it can be motivated employees, right? It can be retention of customers, कि आप customer बहुत retain कर रहे हो. It can be high profits. Goodwill can be created because of quality of product, loyalty and motivation of employees, retention of customers, better sales in future years, expansion of business, introduction of heavy capital or technological advancement. These are all the reasons which can enhance the goodwill of the business. Even if it is created or not created, create भी हो सकती है और goodwill enhance भी होती है. अब होता क्या है, when there is going to be a admission of a new partner, तो जो old partners होते हैं, for example, A, B and C are 3 partners, and C is going to admit into the partnership where A and B was already running the partnership. यानी A और B पहले से partnership चला रहे थे, C जो है वो partnership में नया admit हो रहा है. यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताएं. जी हमारा any problem? हमजा यहाँ तक कोई बताएं, रिपीट कर देता हूँ वरना मैं आगे चलूँ. नो सर, लेकिन सर ये नहीं क्लियर है, ये कहाँ पे है, कौन से पेज पे है ये जो है ये बुक में स्टार्ट में है ना 416. सवाल हमने 470 करना है वैसे, लेकिन जो लेक्चर के स्टार्ट में टॉपिक हमने पढ़ना है वो 416 पे है. ठीक है सर. ठीक है जी. अब पहली बात तो ये हुई कि हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में अपनी, यानी हम गुडविल को अपनी बुक्स में शो नहीं करते, गुडविल को अपनी बैलेंस शीट में करंट नॉन करंट एसेट शो नहीं करते. क्यों नहीं करते आमना? मैंने अभी बताया क्यों नहीं करते, बताएं. मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. बिल्कुल ठीक, क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में उसको मेजर नहीं कर सकते आप, नंबर 1. और दूसरा ये कि गुडविल के पैसे तो तब मिलेंगे ना जब बिजनेस बेचेंगे. उससे पहले तो बस आपने अपने हिसाब से ही बनाई हुई है कि भाई हमारी इतनी गुडविल है. मैं कहता हूँ भाई मैं बाकी लोग 10,000 लेते हैं, मैं 15,000 लेता हूँ, मेरी 5,000 गुडविल है, और भाई मैं लूंगा तो फिर ये बनेगी ना, सिर्फ कहने से तो नहीं बनती है. उतने का बिजनेस सेल होगा तो गुडविल के पैसे मिलेंगे, तो गुडविल वो अमाउंट होगी आपकी. तो मनी मैनेजमेंट के भी अगेंस्ट है और प्रूडेंस के भी अगेंस्ट है. आज जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है कि सी इज नाउ गोइंग टू एंटर इनटू द पार्टनरशिप, व्हाट वी डू, ए और बी सबसे पहले अपनी गुडविल को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं. क्यों? इन ऑर्डर टू शो देयर कैपिटल एट देयर एक्चुअल पोजीशन. सपोज करते हैं हमजा आपने और मैंने गुडविल बनाई हुई, हम सपोज करते हैं कि हमारी जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है जिसे हम शो नहीं कर रहे बुक्स में, या एग्जिस्टिंग गुडविल है या इनहेरेंट गुडविल है जो हमने पिछले 4 सालों में मेहनत से बनाई अपने बिजनेस को चला के, वो 10,000 है. अब 10,000 है, हम इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी हमारी जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है. तो हम दोनों को 10,000 के हिसाब से गुडविल कितनी कितनी जाएगी? जी 20,000. अगर गुडविल 10,000 है और हमारी जो प्रॉफिट है वो इक्वल है, तो हम दोनों को जो गुडविल तो का 5,000 हमें मिलना चाहिए. अब जब हम अपना बुक्स में शो कर रहे गुडविल को और आमरा जो है एज ए न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रही है, तो हमने इसको कहा भाई ठहर जाओ, हमें अपने कैपिटल्स को एक्चुअल पोजीशन पर पहले लाने दो. उसने कहा क्यों? इसलिए कि जो हमने 4 साल से मेहनत की थी, हमने उससे गुडविल भी क्रिएट की हुई है. तो हमने कहा फिर क्या हुआ, लेकिन वो गुडविल के पैसे हमने अपने कैपिटल अकाउंट में शो ही नहीं किए हुए और ना ही हमने उसको अपना एसेट ट्रीट किया हुआ है. लिहाजा first we need to, when first the goodwill is supposed to be retained in the business and distributed between the old partners to show the actual position of their capitals with the old ratio. सबसे पहले गुडविल की एंट्री क्या होगी? गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रीइंस्टेटेड. रीइंस्टेटेड का मतलब होता है दोबारा बहाल करना, दोबारा उसको अपनी वैल्यू पे लेके जाना. अमंग ओल्ड पार्टनर्स विद प्री चेंज रेशियो और ओल्ड रेशियो. उसकी एंट्री होगी, गुडविल डेबिट हो जाएगा आपका 9,000 से. गुडविल डेबिट होगा बिकॉज हमारा ये नॉन करंट एसेट है. डेबिट होगा जो हम शो नहीं कर रहे थे, इसलिए शो करेंगे, डेबिट करेंगे. एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज वी आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली. 1/2 आपका 1/2 मेरा, तो एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 4,500 से और बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 4,500 से. Here goodwill is 9,000 and there are 2 old partners of business A and B. So this entry shows the goodwill is distributed with equal ratio among partners. ऊपर वाली रेशो में हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया
दोनों पार्टनर्स में इक्वल रेशियो से। अगली एंट्री में क्या हुआ, नाउ सी इज कमिंग इनटू द पार्टनरशिप एज पार्टनर। जब वो पार्टनरशिप में आएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा बेटा, वो बिजनेस में कैपिटल के पैसे लेके आएगा और उसकी एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, कैश टू सीज कैपिटल अकाउंट। वो चेक भी दे सकता है तो बैंक हो जाएगा, फर्नीचर भी लेके आ सकता है बिजनेस में, तो फर्नीचर टू सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। उस तरीके से आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले वो कैश के पैसे लेके आएगा, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ गुडविल के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने कैश की एंट्री आपको अलग से समझा दी है, क्योंकि कैपिटल तो उसे लेके आना है। अब गुडविल के हवाले से जो एंट्री होगी वो पहले गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से, ताकि उसको एक्चुअल पोजीशन पे शो कर सकें आप, और फिर हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। सर राइट ऑफ क्यों करना है यार, बताया तो था, गुडविल को तो हम बुक्स में शो करते ही नहीं है, गुडविल को तो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं है, तो गुडविल को आपको दोबारा नॉन करंट एसेट को खत्म करना पड़ेगा। तो सर फिर पहले शो क्यों किया था, ताकि हम अपने ए और बी अपने कैपिटल अकाउंट्स को उसकी असल वैल्यू पर शो कर सकें, रीइंस्टेट करके उसकी असल वैल्यू पे दिखा सकें। तो वो 4,500 है और गुडविल डेबिट हो जाएगी 9,000 से, राइट। नाउ सी इज कमिंग इनटू द पार्टनर as new partner in business, so now goodwill will be written off in business with new ratio 3:1 among all partners A, B और C तीनों में राइट ऑफ हो जाएगी। तो क्या होगा, उनकी रेशियो जो आपस में है वो है 3:1, बनेगी 3/6, 2/6 और 1/6। उससे क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4500 से 9000 का 3/6, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3000 से 9000 का 2/6 और सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1500, डेबिट हो जाएगा 1500 से 9000 का 1/6 और गुडविल आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो देखिए गुडविल हमने पहले डेबिट की और फिर हमने गुडविल क्या कर दी, क्रेडिट कर दी, यानी हमने गुडविल को पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, रिकॉर्ड किया और फिर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सर पहले रिकॉर्ड किया फिर कैंसिल कर दिया, ये तो गलत बात हो गई। भाई यही तो करना था, हमने पहले ए और बी ने अपने कैपिटल्स को एक्चुअल पोजीशन पे शो करना था कि असल हमारा सरमाया 4,500 बढ़ा के बनता है, क्योंकि गुडविल के पैसे भी इसमें आने हैं। और साथ में ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, गुडविल क्रेडिट कर दिया, हमने राइट ऑफ कर दिया उसके अंदर से पैसे कि ये जो हैं वो हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमें राइट ऑफ करने पड़ेंगे। राइट ऑफ इसलिए कर दिए कि गुडविल को तो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं है, तो गुडविल को आप क्रेडिट कर देंगे और तीनों पार्टनर से उनकी प्रॉफिट लॉस चेन रेशियो के हिसाब से पैसे उनके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। कितने, ए का 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6। सर निकाले क्यों है, क्योंकि जब हम बिजनेस अपना सेल करेंगे तो इन तीनों को गुडविल के पैसे मिलेंगे और हो सकता है जितने पैसे 4,500 कम हुए ए से उसको ज्यादा मिल जाए, 3,000 कम हुए बी से उसको उसके हिसाब से पैसे ज्यादा मिल जाए, डबल मिल जाए, सी को उस हिसाब से मिल जाए। क्योंकि बिजनेस हम सेल करेंगे 10 साल बाद 5 साल बाद, तो उस वक्त गुडविल की वैल्यू क्या हो सकता है, बढ़ गई हो, कम हो गई हो। लेकिन आप गुडविल को क्योंकि बुक्स में शो नहीं करना, इसलिए आपको गुडविल के पैसे कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि गुडविल हमारा नॉन करंट एसेट को हमने डिक्रीज करना है, क्योंकि ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। अब ये अमाउंट कैसे आई है मैंने बता दिया पहले भी। पहली एंट्री में हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्रेडिट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो से जो इक्वल थी, फिर उसको राइट ऑफ करते हैं या गुडविल को कैंसिल आउट करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, एसेट डिक्रीज हो रहा है, और कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर देते हैं, तमाम कैपिटल अकाउंट्स को उनमें से पैसे काट लेते हैं। किस रेशियो से, न्यू रेशियो से, जो कि 3/6, 2/6, 1/6 है। अब जरा इसको जरा मिलाते हैं आपस में, जरा गौर कीजिएगा, देखिए बनता क्या है। मेरा सवाल है हमजा आपसे कि पहली एंट्री में ए जो है वो कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, एज कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, 4500, और डेबिट कितनी अमाउंट से हो रहा है, 4500 से। उसको फायदा कितना हुआ, फायदा लॉस कितना हुआ उसको, 0 ना उसको कोई फायदा हुआ ना लॉस हुआ। आगे देखते हैं बी को, बी कितने से क्रेडिट हो रहा था, फायदा उसे कितना हो रहा है, 45, उसके पैसों में से पैसे कितने कम हो रहे हैं, डेबिट कितना हो रहा है वो, 1500। नहीं बी बेटा 3000, अच्छा हाँ, तो 1500 का गैप तो उसको 1500 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है ना जी। सी को, और कितना हो रहा है लॉस, सी अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 1500 से। 1500।
तो बेसिकली नेट इफेक्ट क्या हुआ, गुडविल की वजह से ए को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, बी को 1500 रुपए का बेनिफिट हुआ, और वो बेनिफिट उसने कहां से लिया है, सी के कैपिटल अकाउंट में से। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, कम हो गया, यानी सी का कैपिटल डिक्रीज कर गया 1500 से, और बी का कैपिटल इंक्रीज कर गया 1500 से। यानी गुडविल का बेनिफिट सारे का सारा सी से निकला है, क्योंकि सी को बेनिफिट अब फ्यूचर में मिलना है ना, तो कुछ पैसे तो उसके अकाउंट से कटने थे, और वो बेनिफिट किसको चला गया, बी को चला गया। ये इसका नेट इफेक्ट बना है। लेकिन एंट्रीज हम कैसे करते हैं, ओल्ड रेशियो से हम गुडविल को क्रेडिट कर देते हैं, और न्यू रेशियो से हम गुडविल को डेबिट कर देते हैं ऑल पार्टनर्स में, क्योंकि गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं करते। इफ सी ब्रिंग्स सम कैश इन द बिजनेस फॉर गुडविल in the business, and the cash will be transferred to A and B capital account with old ratio for their directly already created internally पता नहीं क्या लिखा हुआ है, already created goodwill। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, पहले सिर्फ इन दो एंट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया है। इससे आपको समझ आ गई है तो मुझे बताएं ताकि मैं आगे चलूं। जी सर। तो ये एंट्रीज हमने नहीं की जो आपने पास करनी पड़ेगी आपको, और इन एंट्रीज को आपको शो भी करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चीज इफेक्ट होती है, कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल के पैसे लेके आता है, कैश टू कैपिटल अकाउंट। दूसरी गुडविल, गुडविल को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो से, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट होंगे, गुडविल डेबिट होगी। यानी गुडविल को पहले बुक्स में शो करेंगे, और फिर क्योंकि गुडविल को बुक्स में शो नहीं करना होता, वो काउंटिंग कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, तो उसे राइट ऑफ कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और तीनों कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे तमाम पार्टनर्स में न्यू रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। एक तो ये गुडविल होगी। अब आगे बात किसकी, रिवैल्यूएशन की। ये आगे जी रिवैल्यूएशन। ऑन एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, we will open a special account called revaluation account to find the profit and loss on revaluation of assets and liabilities to be distributed between old partners with the old ratio. The nature of revaluation account is profit and loss account. यानी revaluation account हम क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, जो पार्टनरशिप चेंज के वक्त, एडमिशन के वक्त या रिटायरमेंट के वक्त एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उसको एडजस्ट करने के लिए हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ताकि पता चल सके कि एडमिशन के वक्त प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसे कंसिडर करने के लिए इसको बनाया जाता है। अब जरा देखते हैं कि क्यों बनता है और कैसे होता है। हमजा, मैं और आप बिजनेस कर रहे थे, वी वर इन पार्टनरशिप। आमरा ने कहा कि वो पार्टनरशिप में एंटर होना चाह रहे हैं। हमने कहा ठीक है। हमने कहा जी आप 1 लाख रुपए कैपिटल का ले आए। उसने कहा ठीक है जी मैं ले आती हूँ। आप कैपिटल के हिसाब से कैश टू आमरा कैपिटल अकाउंट, और गुडविल के हमने कहा जी गुडविल के जो पैसे हैं, गुडविल की जो एंट्रीज हैं वो हम पास करेंगे। हम पहले अपने कैपिटल अकाउंट को गुडविल को शो करेंगे, और फिर आप कैपिटल अकाउंट से गुडविल के पैसे माइनस भी करेंगे, क्योंकि आपको तो गुडविल का फायदा बिला वजह हो जाएगा, लिहाजा आपके कैपिटल अकाउंट में से भी गुडविल के पैसे कैंसिल किए जाएंगे। इसलिए हम पहले गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो से, और फिर राइट ऑफ कर देंगे न्यू रेशियो से। अब आमरा ने कहा आगे कि आप जो इन्वेंट्री शो कर रहे हो अपने एसेट्स में, बैलेंस शीट में, मार्केट में तो इतने की है ही नहीं। आप शो कर रहे हो 15,000, मार्केट में तो 8,000 की है, आप उसको 8,000 शो करो, ये क्या बात हुई। हमने कहा ठीक है फिर आप ना आओ पार्टनरशिप में। हमजा ने कहा, मैंने कहा क्या कर रहा है हमजा, उसको आने दे, कैपिटल के पैसे लेके आ रही है, हमने कारोबार नहीं चलाना, हमें नया पार्टनर मिल रहा है, हमारा लॉस शेयर होगा, हमारा प्रॉफिट शेयर होगा, वो ठीक है, लेकिन हमारी जो ड्यूटीज हैं वो भी तो शेयर होंगी ना, और हमारा कैपिटल भी कंट्रीब्यूट हो रहा है बिजनेस में, ऐसे ना कर। मैंने कहा आमरा से कि ठीक है इन्वेंट्री हमारी आप सही कह रही हो 15,000 की नहीं 8,000 की है, हम उसे कम कर देते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग हम शो कर रहे हैं 50,000 की, वो तो अब 70,000 की होगी, देख लो मार्केट, फिर उसको इंक्रीज कर दो। आमरा ने कहा ठीक है। अब हुआ क्या, इसका मतलब व्हेन देयर इज गोइंग टू बी अ पार्टनरशिप डेट, पार्टनरशिप change, then all the partners has to come to a conclusion. Some assets will increase in their value and some assets will decrease their value, वो वैल्यू जिन पर दोनों आपस में क्या हो जाए, दोनों पार्टीज आपस में क्या हो जाए, एग्री हो जाए। So they are agreed, they will show their assets on the agreed values, and in order to show the assets on agreed value, some assets will increase and some assets will
decrease. That is called revaluation of assets. And the nature is to find profit and loss. जो किसका हक होगा? ओल्ड पार्टनर्स का. लॉस होगा तब भी उन्हीं की वजह से हुआ है, प्रॉफिट होगा तब भी उन्हीं की वजह से हुआ है. तो इंक्रीज इन एसेट की एंट्री क्या होगी? एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट. रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर प्रॉफिट एंड लॉस की है. अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो फायदा हो रहा है, मतलब डेबिट हो रहा है तो एक्सपेंस हो रहा है, नुकसान हो रहा है. अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इनकम है, फायदा हो रहा है. तो एसेट इंक्रीज करेंगे तो बेनिफिट होगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा. एसेट डिक्रीज करेंगे तो एसेट क्रेडिट होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा. क्यों? नुकसान हो गया ना डिक्रीज होने से. लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि नुकसान हो गया, क्योंकि लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो नुकसान होगा. लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो फायदा होगा, लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट and we will calculate, we will find the difference on both sides and we will write it with the name profit and loss find होता है. और वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो के साथ. उसकी एंट्री होती है, अगर प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस हो तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. मेरा सवाल ये है हमारा आपसे कि रिवैल्यूएशन में जो एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं, जो भी हुआ है, उसका फायदा नए पार्टनर यानी सी को क्यों नहीं हुआ? यानी हमने कहा ना कि दोनों जो ओल्ड रेशियो से ओल्ड पार्टनर्स को, जो ए और बी है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट होगा सिर्फ प्रॉफिट लॉस जो भी होगा. सी को इसमें कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा या फायदा या नुकसान नहीं जाएगा. क्यों? पता नहीं सर. चलो वो बीच में से निकल गया था, इसको जरा आने दो. अगर एक काम, एक चीज की वैल्यू बढ़ गई है मेरे आने से पहले, तो वो किसकी वजह से बढ़ी है? जो मेरे से पहले लोग थे उनकी वजह से वैल्यू इंक्रीज की है. अगर किसी चीज की वैल्यू कम हो गई है और उसमें नुकसान हुआ है तो वो भी किसकी वजह से हुआ है? पुराने लोगों की वजह से हुआ है. मैं तो आया भी हूं, तो मेरा तो उस प्रॉफिट में तो कोई हिस्सेदारी नहीं है. हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वैल्यू इसकी बढ़ाए इसकी कम करें, वो अलग बात है. लेकिन अगर वैल्यू ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, वो पुराने लोगों के हक में जाएगा, क्योंकि जो कुछ हुआ है उनकी वजह से हुआ है. मैं तो आया भी अभी हूं भाई. मैं आज की डेट में बिजनेस में एंटर हो रहा हूं और मैंने देखा कि एसेट बढ़ गए तो मेरी एसेट बढ़ गए. भाई वो पहले मेहनत की हुई थी, उसमें से एसेट बढ़े, उनकी मेहनत है, उनका पैसा है, उनका प्रॉफिट जाएगा. लॉस होगा तो वो भी उनको जाएगा. इसलिए रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. उसमें न्यू पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं होता. रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस पार्टनरशिप छोड़ के चले जाए, तो उस सूरत में हम उसके तमाम चीजों को, कैपिटल अकाउंट को, करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उसको पैसे देकर फारिग कर देते हैं. यानी क्योंकि वो पैसे लेके चले जाता है. देखिए नीचे क्या लिखा है, नोट देखिए, नोट मैंने क्या लिखवाया है, बाकी बातें नहीं देखनी आपने. Revaluation and goodwill adjustments are supposed to be dealt through capital account because they didn't arise from trading activities. तो उसको करंट अकाउंट में नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे. आपका सवाल उठता है ना कि सर हर चीज तो हम करंट अकाउंट में करते हैं, लेकिन गुडविल और रिवैल्यूएशन को कैपिटल अकाउंट में ट्रीट किया जाएगा, करंट अकाउंट में ट्रीट नहीं किया जाएगा. क्यों? क्योंकि वो कारोबार के चलाने से प्रॉफिट या लॉस या गुडविल क्रिएट नहीं हो रही, वो कैपिटल एक्टिविटीज है. They will be dealt through capital account rather than current account because they didn't arise because of trading activities. ठीक है. New partner can bring some asset in the business as capital also. Any partner can withdraw an asset from the business which is subtracted from his capital. ठीक है जी. तो अब हम चलते हैं जी आगे अपने सवाल की तरफ. तो सवाल जो हमारा था वो 470 पेज के ऊपर है. हम 470 पेज जो है वो निकालते हैं और हल्का सा क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हम इससे आगे इंशाल्लाह कल मजीद इससे आगे हम चलेंगे. I hope so that you have understood this lecture that I have delivered. ये जी आ गया 470 जी. तो देखिए आपको नॉन क्लासेस दिए हुए
किम अ सोल ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉन क्रेसेंट मोटर व्हीकल इक्विपमेंट फिक्सचर, एक ही बंदा था पहले, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैपिटल दिया हुआ है उसका, प्रॉफिट है, ड्राइंग्स हैं, करंट लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रेड पेएबल है। ऑन 1 अक्टूबर किम एडमिटेड चैन एज ए पार्टनर, goodwill was valued at 1,20,000 and it will not remain in the books of the partnership, books में रखते ही नहीं हम। The profit sharing ratio was agreed at Kim 60% and Chan 40%। अब चैन बिजनेस में क्या लेके आ रहा है? चैन agreed to pay a check of 1,60,000 to the partnership. In addition, he introduced equipment valued 3,25,000 and inventory valued at 26,000। तो पहले कैपिटल की एंट्री पास कर लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या होगी। तो ये मैं मिटा रहा हूँ अब, क्योंकि हम एडमिशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली एंट्री जो हम पास करेंगे वो क्या होगी कि वो क्या चीज इन्वेस्ट कर रहा है। एक तो वो इन्वेस्ट कर रहा है जी बिजनेस में, क्या लेके आ रहा है? चेक। कितना? बैंक है, बैंक डेबिट हो जाएगा। आपका बिजनेस में कितना? 1,60,000। दूसरा वो लेके आ रहा है इक्विपमेंट बिजनेस में, वो कितना लेके आ रहा है जी इक्विपमेंट? 3,25,000 का। और इन्वेंट्री भी लेके आ रहा है 26,000 की। हम कौन है? खुदा के लिए प्लीज पुरानी बातें ना बतानी पड़े मुझे दोबारा। हम बिजनेस है, बिजनेस में बैंक बढ़ रहा है, इक्विपमेंट कैसे इंक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है और नया पार्टनर को लेके आ रहा है। क्रेडिट क्या हो जाएगा? चैन कैपिटल अकाउंट। तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है और ये पैसा हमने उसको वापस करना है, वापस करना है हमने। कैपिटल बिजनेस की जिम्मेदारी होती है, वापस करना होता है एक दिन, तो वो बिजनेस का आखिरी ही दिन क्यों ना हो। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 5,11,000। ये तो हमने पास कर दी एंट्री कैपिटल। अब बारी आती है गुडविल की। गुडविल की 2 एंट्रीज होती हैं, आपको पता है। एक तो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, यानी एसेट बनाएंगे आप उसको अपना, और उसको आप ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो से। अब ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो पार्टनर ही एक था पुराना, सारी गुडविल उसी को चली जाएगी। गुडविल कितने की है देखें, गुडविल 1,20,000 की, तो सारी सारी उसी को चली जाएगी, क्योंकि तब तो वो पहले तो वो अकेला ही था ना। अगर 2 होते तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ओल्ड रेशियो से, अब एक है तो एक में चली जाएगी। और हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ दोनों में होगी, किम कैपिटल अकाउंट और चैन कैपिटल अकाउंट, और गुडविल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। एक बच्चे ने सवाल कर दिया मुझसे, सर गुडविल क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? और मैंने कहा यार खुदा का नाम ले, गुडविल ने तो होना ही क्रेडिट है, इसलिए कि गुडविल को तो बुक्स में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हम। वो तो हम सिर्फ जो नया पार्टनर आता है उसको दिखाने के लिए कि हमारा असल कैपिटल 1,20,000 से ज्यादा है, गुडविल की वजह से हम गुडविल को दोबारा रीइंस्टेट करते हैं और नेक्स्ट एंट्री में उसको दोबारा राइट ऑफ भी कर देते हैं। राइट ऑफ जो होगा वो होगा न्यू रेशियो से, और न्यू रेशियो क्वेश्चन में दी हुई है 60% और 40%। आप देख सकते हैं, सवाल आपके सामने होगा। तो 60% आपकी आती है 72,000 और 40% आपकी आती है 48,000। तो ये आपने गुडविल की एंट्रीज पास करनी। इस क्वेश्चन में एसेट्स की कोई रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, इंक्रीज या डिक्रीज, तो उसकी एंट्रीज पास हमने नहीं की। ये एंट्रीज रिकॉर्ड कर लें। अब हम इसके बनाएंगे क्या? कैपिटल अकाउंट्स। हमने क्या बनानी है जी? कैपिटल अकाउंट, जिसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो आप जल्दी से ये रिकॉर्ड कर लें जरा, ताकि मैं कैपिटल अकाउंट्स बना के आपको दिखा सकूं। लिख लिए? जी सर लिख लिए। चलें ठीक है, अब ये आप अपने पास रिकॉर्ड रखिएगा। अब मैंने इसके बनाने हैं जी कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट में किस किस का बनाऊंगा जी? एक बनेगा किम का और एक बनेगा चैन का। किम, चैन। थोड़ा मैंने जगह नहीं छोड़ी। किम और चैन। सबसे पहले तो इसका आ जाएगा ब्रॉड डाउन बैलेंस किम का, क्योंकि किम का तो ब्रॉड डाउन दिया हुआ है ना, चैन तो भी आया है, लेकिन किम का तो ब्रॉड डाउन क्वेश्चन में मौजूद है। तो हम देखते हैं किम का ब्रॉड डाउन कितना है। याद रखिएगा, देखें
ओपनिंग कैपिटल नहीं उठाना, क्लोजिंग उठाना है, 5,92,000 है, क्योंकि पार्टनरशिप साल के एंड में हो रही है। एडमिट पार्टनरशिप साल के एंड में हो रहा है। साल के एंड में कैपिटल कितना है? 5,92,000। सर ये बात समझिए, देखो बैलेंस शीट डेट क्या दी हुई है? 30 सितंबर 2014। कब आ रहा है किम? नंबर 1 पॉइंट 1 अक्टूबर, साल के एंड में आ रहा है। तो जो ब्रॉड ऑन कैपिटल लेंगे, कैपिटल अकाउंट को कितना लेंगे? 5,92,000 किम का। अब पहली एंट्री पोस्ट कर देंगे। बैंक चैन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बैंक की वजह से कितना बैंक लेके आ रहा है? वो बैंक कितना लेके आ रहा है? 1,60,000। इक्विपमेंट बैंक 1,60,000। इक्विपमेंट कितना है जी? 3,25,000। 3,25,000। कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा ना उसका। और तीसरी चीज क्या थी? इन्वेंट्री 26,000। चैन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद एंट्री किसकी आ जाएगी? गुडविल की। तो गुडविल पहले क्या हो रही है? पहले गुडविल आपका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? किम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 1,20,000 से। किसकी वजह से? गुडविल की वजह से। और फिर दोनों के क्या हो रहे हैं? वो दोनों डेबिट हो रहे हैं कितने से? 1,96,000 से और 1,48,000 से। मैंने गलत लिखा है, 6 नहीं है ये, $72,000। ओके हो गया जी। बस इसका टोटल कर लेंगे हम, आपका कैरी डाउन आ जाएगा। और ये आपने कैपिटल अकाउंट जो है वो बना दिए। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बन रहा, वरना उसका भी प्रॉफिट लॉस में कैलकुलेट करता। क्यों नहीं बन रहा इस सवाल में? क्योंकि वो ऑलरेडी रिवैल्यूएशन हो ही नहीं रही इस क्वेश्चन में कोई। ये आता है 7,12,000, उसमें से माइनस कर देंगे 72,000, तो इसके क्या कैरी डाउन आ जाएगा? 6,40,000। अब जो आप बैलेंस शीट अगर दोबारा बनाते हैं तो उसमें किम कैपिटल अकाउंट भी आएगा और चैन कैपिटल भी अकाउंट भी लिखेंगे आप, और वो नई अमाउंट से लिखेंगे आप। अमाउंट अब आपकी आएंगी, ये 5,11,000 है, ये हम माइनस कर देंगे 48,000 इसमें से, तो आपका आ जाएगा 4,63,000। और ये नेक्स्ट ये क्या बन जाएंगे? ब्रॉड डाउन, वो आप लिख लीजिएगा। तो ये मैंने इसकी कैपिटल अकाउंट भी बनाकर आपको दिखा दिए हैं, और ये भी आप लिख लें जल्दी से। सर ये कैसे बनाए यार? देखो एंट्री से बनाए, एंट्री पास नहीं की थी पीछे। चैन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था बैंक की वजह से, इक्विपमेंट की वजह से, इन्वेंट्री की वजह से क्रेडिट कर दिया। ब्रॉड डाउन किम का था 5,12,000, चैन का तो कोई था ही नहीं। फिर गुडविल चैन कैपिटल किम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है 1,20,000 से गुडविल की वजह से, और फिर गुडविल राइट ऑफ कर दी। फिर किम और चैन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे थे गुडविल की वजह से 72,000 और 48,000 से, कैरी डाउन निकाल लिया मैंने। उसके बाद रिवैल्यूएशन में हो ही नहीं रही थी तो मैंने उसको लिया ही नहीं। आपको देखते हैं क्वेश्चन में वो कहता क्या है। ये सारी ट्रीटमेंट तुमने कर ली। क्वेश्चन में ये कहता है आपने बनाना है प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ किम एंड चैन, मैंने बना दिए। फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द पार्टनरशिप। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आएगा वो आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जो आप घर में ट्राई कीजिएगा क्योंकि टाइम कम रहेगा मेरे पास। आप बैंक लिखेंगे 1,60,000 का, क्योंकि बैंक तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो बैंक आ जाएगा 1,60,000 का नया लिखेंगे। मोटर व्हीकल आ जाएगा 1,00,000 का, कोई चेंज नहीं। इक्विपमेंट आ जाएगा 80,000 प्लस 3,25,000। फिक्शन एंड फिटिंग एज इट इज। इन्वेंट्री 1,05,000 प्लस 26,000, वो भी आएगी उसके अंदर। फिर टोटल एसेट्स आ जाएंगे आपके। कैपिटल क्या लिखेंगे? किम कैपिटल अकाउंट कितना लिखेंगे आप? कितना लिखेंगे किम कैपिटल अकाउंट? 6,40,000। और साथ लिखेंगे चैन कैपिटल अकाउंट कितना? 4,63,000। बैलेंस शीट में आप ये लिखेंगे आप। फिर लायबिलिटीज आ जाएंगी, ट्रेड पेबल सेम, बैंक ओवरड्राफ्ट सेम, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है जी, उससे आप बैलेंस शीट बना लेंगे, दोनों आपकी बराबर आ जाएंगी। आप पॉजिटिव बैंक 1,60,000 में 16,000 माइनस करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है ना। तो 1,60,000 जो आपने लिखना है करंट एसेट में, 1,60,000 में से 16,000 माइनस करके आप 1,44,000 भी लिख सकते हैं करंट एसेट में बैंक के नाम से। तो बैलेंस शीट बनाने की ट्राई कर लीजिए घर में। बाकी मैं कोई सवाल नहीं दे रहा, कल इंशाल्लाह कल हम क्लास करेंगे, और कोशिश करूंगा कल क्लास सुबह ही कर लूँ, लेकिन वादा मैं फिर नहीं कर सकता। कल मैंने कोर्ट जाना है असल में सुबह, लेकिन होपफुली मैं जल्दी आ जाऊंगा, तो मैं क्लास